Bridge to be Keshbati. Shape of fitness. Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome to the second match of Jammu Kashmir Premier League. Today's encounter is between Bridge Blasters and Shape of Fitness. Bridge Blasters won the toss and they have decided to bat first. So fielders are taking their place and bowler is getting ready. About 13 minutes playing England. टॉस के बाद नहीं होगा. Rameez will be opening the bowling for Inshib and Adil Rishi will be facing him. First ball right outside the off stump. Adil Rishi let it go. The wicket keeper. It's pretty hot today. Rameez once again coming right arm over. Adil Rishi is getting ready. He's a very explosive batsman. Here comes Rameez. Post Adil comes forward, plays it towards the point. Fielder charges in. There's no room for any single. This is a very good batting track. Most of the scores which we have seen in the last few days. Rameez in the meanwhile comes post Adil comes forward, plays it over the middle. And that is gone for a boundary. Beautiful shot coming down the track, placing it perfectly into the boundary fence for 4 runs. Here comes Rameez. Once again, goes to Adil. Adil plays it towards the Torsker leg, runs for a single, and score moves to 5. Wasim Kruzi, first time on strike. There's a slight change in the fielding. The man came a little squarer. Here comes Adil. Bows to Wasim. Wasim plays it towards the long on and moves on for a single. With this single, Wasim opens his account and the score moves to 6. This is the first over in progress. There's again slight change in the field. There's a mid-on, short mid-on. Here comes Rameez. Bows to Adil. Adil comes forward. And there's a chance for a run out. Finally, Adil made it safely, and that is the end of the first over. After first over, Bridge Blasters 6 without any loss. 7, sorry, I beg your pardon. 7 without loss. The surface on which this tournament is being played is a fantastic surface. You can judge from the fact that most of the matches, the scores have almost in every innings have gone beyond 160, 170. That's a power score you can say on this track. So next bowler is Raja. Raja Muzaffar.
Adil Rishi will be facing him. Here comes Raja Muzaffar. Adil goes back, pulls him over the square leg for a huge six. It was short, asking for the punishment it got. It was launched into the mid-wicket boundary for a six. Adil Rishi is an explosive batsman, as I said before. He can take any bowling lineup apart. But you need to keep in mind that the bowler bowled it completely. It was a short delivery from a spinner. It was a huge mistake. Raja Muzaffar once again goes back, plays it over the head of the bowler, and the ball crosses the fence for four. Beautiful shot. There was a slight chance for the bowler to catch, but he could not grab onto the opportunity, and that ended in a boundary. Raja Muzaffar once again has gone for some runs in this over so far. Once again comes and bowls to Adil. Adil comes forward, plays it towards the deep mid wicket. Goes for a single, was looking for a second, but a good throw. Is a very strong arm, that gentleman. They threw it from the boundary. So after 1.3 hours, the score is 18 without loss. Raja Muzaffar comes. Slip has been removed and goes to the short third man. Raja Muzaffar comes, goes to Wasim Kruzi. Wasim Kruzi goes onto the back, he plays it towards the point. Beautiful fielding there by the fielder. There's no addition to the score. Here comes Raja Muzaffar. Goes to Wasim Kruzi. Wasim Kruzi comes forward, plays it towards the mid wicket. There's a fielder there. He makes a valiant effort, but could not stop the batsman from taking two. Wasim Kruzi is also a devastating batsman. Here comes Raja Muzaffar, bowls. Wasim Kruzi comes forward, plays it again to the same area. In fact, to the same fielder. Here comes the throw, and in the meanwhile, they had the time to take a single. And after 2 hours, Bridge Blasters are 21 for no loss. After 2 overs, the score is 21 for no loss. So we're going to be. Comes Ramiz, bowling to Wasim. Cuts well. It goes between the two fielders at the point and the cover. Goes into the fence for four. Beautiful shot by Wasim Kruzi. It was short and wide. He bisected the two fielders at point and extra cover perfectly. Here comes Ramiz once again. Goes to Wasim. Wasim plays it towards the point. It was little closer to his body. Was actually looking to cut it, but controlled his aggression in the end. Played it defensively towards the point. Comes Ramiz. Goes to Wasim. Wasim comes forward. Tries to flick it. The ball hits the pad. Goes to the short square leg. One extra run. Leg by has been signaled by the umpire. Comes Ramiz. Goes to Adil. Adil comes forward and there's an appeal. There was an appeal.
Umpire said no. Well bowled. Third over in progress. Ramesh comes. Post to Adil. Adil sweeps it over the square leg for a six. A well timed shot. Beautifully played. He timed it to the perfection. It carried all the way for a six. These two are very good batsmen. Make no mistake about it. If they carry on like this, Birch Blasters are going to pose a huge total. Ramiz has bowled well so far. I guess in this over he has conceded 10, 11 runs. I guess. Yes. So they have decided to go in with two spinners in the beginning, in the power play probably, because they realize. Sohab, The ball has gone out of the playing area, so we have got a new one. Here comes Ramiz. Goes to Adil. Adil initially tried to come down the track, but later on the bowler changed the length of the ball, kept it little short. So Adil decided to stay back into the crease and tap it towards the point. There's no addition to the score. And after the end of 3 hours, Birch Blasters are 32 without loss. After 3 overs, the score is 32 for no loss. There's a bowling change. From the so there's a bowling change. Asmat Asmat has been brought into the attack. Wasim Cruzy is on the strike. There's a slight breeze blowing from our left to right. Getting a little pleasant here, considering the hot and humid temperature we have been facing from the last couple of days. Here comes Asmat. Bowling to Wasim. Pulls it short. Plays it defensively towards the point. There's a chance for a single. The batsman cross. Asmat once again. Adil Rishi will be facing him. Comes Asmat. Goes to Adil. Adil flicks it towards the fine leg. There was a chance of a single, but he declined it, considering that the umpire had called a no ball, so he wanted to have a go at the free hit himself.
So he decided not to take a single. And see, you can gauge it from yourself that how much confident he is about his ability to hit big shots. He's known for playing big innings. Adil Rishi is a well-known cricketer, especially in T20 format. He can take any bowling attack to cleaners. He's a fantastic batsman. So is Wasim Kruzi. Looking at the scorecard after 3.1, Bridge Blasters are 34 for no loss. Current run rate is 10.74. The ball is coming onto the bat very nicely. If you bend your back, you'll get the purchase from the wicket. We have seen Sipners doing well on this track. We have seen left arm Sipners doing exceptionally well on this track. So there is something for everybody here. So it's a perfect T20 wicket. Here comes Asmat. Goes to Adil. It's a free hit. He comes forward. Fails to make a good contact with the ball. And the batsman had the chance for a single. By Adil Rishi's standards, he will not be happy with himself because he missed on a free hit. The bowler bowled it within the body. Adil Rishi was looking for the room. The bowler was up to the mark. He kept it close to him. Did not give him any chance to free his arms. Asmat once again comes. Ball to Wasim. It's a short bound ball. Beautifully bowled. Beautifully bowled. It was whizzing past his face. I'm sure it must have woken him up. It was a well directed short pitch delivery by Asmat, and it was traveling with some velocity behind the ball. Asmat. Yes, gone for 3 runs only in this over. Very good over so far. Let's see, can he finish it? Asmat comes. Balls to. What? Oh, there's an edge! And it's a no ball. My word. Can you believe this? He has bowled 2 no balls in an hour. 2 free hits. There was a there was a chance to catch the ball, but eventually it would not have counted because it was a no ball. But the fielder in the slips could have done better. He could have stopped the ball from the boundary. Sloppy fielding there by the fielder, and he has been changed from that place. Rightly so, he deserved it. He has costed his team 4 runs. He could have very easily stopped it. If not catching it, at least he would have successfully stopped it from going to the boundary. So Asmat has himself to blame because he bowled 2 no balls so far. One somehow he managed to keep Adilushi quiet. Now he has to deal with Wasim Kruzi. Here comes Asmat. Wasim Kruzi ready. Bowls. He missed it. He completely missed it. Another free hit wasted. One by Adil Rishi and the other by Wasim Kruzi. He's a brave bowler, let me tell you. He's keeping the ball up. He's letting the ball to swing. If there is any swing whatsoever available, he's trying to utilize it to the maximum rather than bowling short. And every time he bowls it short, he makes the ball to reach the batsman's shoulders. Again, this time short back of the line, plays it towards the deep square line. And batsman cross for a single.
After 3.45 overs, the score is 41 without loss. This bowler he's bowling well, and he has some real strong shoulders. You could see the amount of bounce he's getting from the pitch. Here comes Asmat. Balls to Adil. Again, back of length. Adil goes onto the back foot, plays it towards the deep square leg. There's a room for a single, and that ends the over. After 4 overs, the score is 42 for no loss. After 4 overs, the score is 42 for no loss. Mainyun? Bowler name Azhar. कशो वार वार है अस्सलाम वालेकुम तशक्कुर ये जिसको शुरू टीम makes shape of fitness है shape of नॉन स्ट्राइक पर कुछ नहीं जी सिक्का दर्शन के जी Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all of our viewers. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली थैंकफुल टू होल द मैनेजमेंट बॉडी ऑफ जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग जिन्होंने आज हमें मौका दिया यहाँ पे कि आप लोगों को थोड़ा सा एंटरटेन कराए. आज संडे है, सुपर संडे है. वेल देखते पहले कि कौन कौन हमारी आवाज को पहचानेगा यहाँ से, ताकि मुकाबले का आज मजा ले. आज आए जरूर है आप लोगों को एंटरटेन कराने के लिए. बल्लेबाजी टॉस जीतकर ब्रिज ब्लास्टर्स ने आज पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया. गेंदबाजी की दौड़ शेप ऑफ फिटनेस के हाथ में. अजहर स्पार्टन्स के किंग माने जाते हैं, रफ्तार इनकी गेंदबाजी में है, लेकिन शेप ऑफ फिटनेस के लिए खेलते हैं. आदिल ऋषि वेपन है जम्मू कश्मीर वैली के, और वो स्ट्राइक पे मौजूद है. अच्छी गेंद अजहर की, और साथ निभा रहे उनका वसीम प्रूसी. सबसे पहले अगर देखा जाए ब्रिज ब्लास्टर के प्लेइंग 11 की बात करूं, पूरा स्क्वाड जम्मू एंड कश्मीर का मुझे लगता है ब्रिज ब्लास्टर की टीम में है. आदिल ऋषि से शुरुआत करिए. आदिल ऋषि, वसीम प्रूसी, जहांगीर लोन, आदिल गंगोली, आमिर शोफी, जावेद जडू, इश्तियाक नागा, ये सारे खेल रहे ब्रिज ब्लास्टर्स के लिए इस सीजन में. पटकी हुई गेंद बैकफुट पे चले गए, गैप, फील्डर पीछे है और 1 रन का मुजाहरा. गाजी शबीर भट्ट हमारे साथ जुड़े. इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया. इमरान भाई सलाम. वालेकुम अस्सलाम. मीर सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. जितने भी फ्रेंड्स हमारे साथ मुकाबले का मजा ले रहे हैं, लाइव को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ साथ, ताकि आपके फ्रेंड्स भी जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग सेशन सीजन पहला है, 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है पहले सीजन में. अच्छी गेंद, रन की मांग और आराम से रन चुराते हुए आदिल ऋषि. अच्छा कॉम्बिनेशन
अजहर की गेंदबाजी जानते हैं, बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं आदिल ऋषि के साथ। पहले ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 46 बिना किसी नुकसान के। After 5 overs, the score is 46 for no loss. सुहेल, लव यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम मीर सलीम, वालेकुम अस्सलाम इरफान डार। बने रहिए आप हमारे साथ, लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ साथ, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस लाइव रोमांचक मुकाबले का मजा ले। एंड मैं पर्सनली थैंकफुल हूँ मारूफ सर का, जो इंटरनेशनल न्यूज सर्विस चलाते हैं। प्रोफेशन हमारा सेम है, वो भी जर्नलिस्ट है, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन पैशन क्रिकेट की और हमारा ज्यादा है। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, और इनकी पूरी मैनेजमेंट को, जो भी इस लीग को चला रहे हैं। अब मजा आएगा। आदिल ऋषि और वसीम क्रूजी क्रीज पे मौजूद। गेंदबाजी की दौड़ दी गई है असमत फयाज के हाथ में। पटकी हुई गेंद, शॉर्ट पिच गेंद असमत फयाज की। असमत फयाज की अगर बात करें, 138 प्रति ओवर के हिसाब से गेंदबाजी करते हैं। रफ्तार है इनकी गेंदबाज में, लेकिन जानते हैं स्ट्राइक पे वसीम क्रूजी और नॉन स्ट्राइक पे आदिल ऋषि है। इन जैसे बल्लेबाजों को डगआउट का रास्ता दिखाना है तो जाल बिछाना पड़ेगा, वरना अगर आदिल ऋषि इस मुकाबले के 10-12 ओवर खेल गए तो पहली इनिंग में आपके मुकाबले की जो है शेप ही बदल कर रख देंगे। पड़ती हुई गेंद और स्ट्राइक रोटेट करते हुए बल्लेबाज। वेलकम जिगर इमरान टू लीग। बशीर सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तौसीफ भाई, इमरान भाई सलाम वालेकुम अस्सलाम। नहीं तो ऐसा लगता था कि ये इट्स जस्ट इमरान भाई, लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। आदिल खान, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर सिंह, लव यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वेयर इज आमिर दीन? सारे यहाँ पे मुकाबले का मजा ले रहे हैं। फिलहाल मुकाबले की ओर नजर डालते हैं। कश्मीर का वेपन स्ट्राइक पे मौजूद है, आदिल ऋषि, और सामना करेंगे असमत फयाज का। पटके हुए गेंदबाजी, वाह, अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए। गेंदबाज के पास जो वेपन होता है बल्लेबाज को डराने का, डीमर गेंदबाजी, उसका इस्तेमाल करते हुए असमत फयाज। योर वॉइस इज सो गुड, बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए, लेकिन साथ साथ में आप इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स जो है इस रोमांचक मुकाबले का मजा ले। टॉस जीता आज ब्रिज ब्लास्टर ने, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। इनके कप्तान आदिल ऋषि खुद आए बल्लेबाजी के लिए, एज ओपनर का रोल अदा करते हैं जिस भी टीम के लिए खेलते हैं। और ब्रिज ब्लास्टर के ऑनर कश्मीर के अंबानी अब्दुल रशीद भट्ट हमारे साथ लाइव पे जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद साहब हमारे साथ लाइव पे जुड़ने के लिए। पटकी हुई गेंद, लेकिन फिर से एक मरतबा नो बॉल का इशारा। नो बॉल मतलब बल्लेबाज के पास मौका है गेंद को हवा में यात्रा कराने का बिना टिकट के। अब देखा होगा स्ट्राइक पे आदिल ऋषि है, इनके लिए नामुमकिन नहीं, कभी भी करा सकते हैं। इनके मूड पे डिपेंड करता है। रियली गुड क्रिकेटिंग लीग। इस वसीम कासुर इन प्लेइंग? बिल्कुल, वसीम कासुर पैड लगा के नंबर 3 पे आएंगे बल्लेबाजी के लिए, लेकिन अब जब इनमें से कोई बल्लेबाज डगआउट कर वापस आएगा। असमत फयाज, पटकी हुई गेंद, फिर से विकेट चोरी, बल्ला चलाया, फील्डर देखते रह जाएंगे और अंपायर के इशारे का वेट करेंगे। अंपायर के बार जीवा, नो बॉल का इशारा और साथ में चौका। मैं पहले ही बता चुका था आपको, आदिल ऋषि के मूड पे डिपेंड करता है। ये कभी भी गेंद को हवाई यात्रा करा सकते हैं। गेंदबाज को अगर आदिल ऋषि बल्लेबाज जैसे बल्लेबाज को डगआउट का रास्ता दिखाना है तो जाल बिछानी पड़ेगी। यहां से आपको गेंदबाजी में कुछ अलग करना पड़ेगा, तब जाके आप यहां से। और सीनियर गेंदबाज अजहर आपकी टीम में मौजूद है। अजहर ने बहुत ज्यादा क्रिकेट और असमत फयाज, इनके पास भी तजुर्बा है प्रोफेशनल क्रिकेट का। जहांगीर लोन को सलाम बोलिए। नॉर्थ कश्मीर के क्रिकेट सेंसेशन है जहांगीर लोन। इमरान भाई ये कहां पे है? और साथ ही साथ में आमिर सोफी, उनको भी पाना है। नजर आसिफ बख्शी, वो भी मैदान में मौजूद है। असमत फयाज भी है। और ये लीजिए, चलिए, जिसकी तलाश थी, प्यास थी, लेकिन शायद नो बॉल थी। बिल्कुल नो बॉल थी, लेकिन आदिल ऋषि ने घुमाना चाहते थे गेंद को, हवाई यात्रा कराना चाहते थे, लेकिन मिस कर गए। अच्छी गेंद, दाद देनी पड़ेगी गेंदबाज के सोच की।
असमत फयाज। इमरान भाई जावेद साहब हमारे साथ जुड़े हैं, ग्रीन वैली स्कूल से मौजूद, आपको जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग का लाइव मुकाबला दिखा रहे हैं। पटकी हुई गेंद कोई भी छोड़ दी, गेंद बल्लेबाज आदिल ने। शेप ऑफ फिटनेस की बात करें, आदिल बख्शी, माफी चाहूंगा, आसिफ बख्शी, असमत फयाज, अजहर, ये वेपन इनकी स्क्वाड में मौजूद है। आदिल खान, बिलाल हसन, बिलाल पोलार्ड, कौन से पोलार्ड है वो भी समझ आ जाएगा कि शायद नॉमिनेटेड प्लेयर, और इस वक्त वाइड का इशारा जरूर अंपायर की तरफ से आएगा। बिल्कुल लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर गेंद। आसिम, अजहर, आमिर दीन, आमिर दीन को हमारी तरफ से सलाम बोलिएगा, जी पहुंच चुके हैं उन तक सलाम। आसिफ बख्शी, असमत फयाज, रमीज, राजा मुजफ्फर, बिलाल हसन, आदिल खान, ये आज प्लेइंग 11 है शेप ऑफ फिटनेस का। शेप ऑफ फिटनेस की अगर बात करें, शायद 2 मुकाबले इससे पहले जीत चुके हैं, 1 मुकाबला आज जीत चुके हैं। करारी टीम है, लेकिन अभी तक ब्रिज ब्लास्टर की बात करें, अभी तक सबसे हाईएस्ट टोटल, सबसे लंबा टारगेट ब्रिज ब्लास्टर ने दिया है। वाइड का इशारा, शायद फिर से बिल्कुल सही निर्णय, फिर से एक मरतबा लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर गेंद और अंपायर का इशारा वाइड का। स्कोर की बात करें 55, छठा ओवर चल रहा है, यानी पहले पावर प्ले का आखिरी ओवर, और इसके बाद जो है फील्डिंग 30-60 सर्कल के बाहर सजाई जाएगी। ब्रिज ब्लास्टर का प्लेइंग 11 क्या है बता दूं तो कश्मीर का स्क्वाड है। ब्रिज ब्लास्टर के लिए लीजिए, पहले से ही बता दूं, आसिफ खान, फैसल डार, वसीम कातरू, उवैस बहा, वसीम क्रूजी, जहांगीर लोन, रूफ चाडूरा, आदिल गंगोली और समीर रशीद, इश्तियाक रसूल, जावेद जड्डू, आमिर सोफी, उमर मजीद, ये प्लेइंग 11 है। मुकाबले दाद देनी पड़ेगी पूरे मैनेजमेंट की, जितने भी मुकाबले का मजा ले रहे हैं और साथ साथ में जो इसको चला रहे हैं। हालांकि इससे पहले हमने After 5.5 overs, the score is 55 for no loss. एक गेंद इस ओवर की बाकी है, अभी 5 गेंद समाप्त, यानी पहले पावर प्ले का आखिरी ओवर, यानी आखिरी गेंद। बता चुके हैं कि इसके बाद 30 सर्कल के बाहर फील्डिंग सजाई जाएगी बल्लेबाजों के लिए। यहां से अगर देखें, ऑलमोस्ट 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रहे हैं बल्लेबाज। ये कहां पे है? डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, जानते होंगे आप, ग्रीन वैली एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है, उसके ऑफिशियल प्लेग्राउंड में खेला जा रहा है जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट। 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन ये देखना होगा कि एडिशन फर्स्ट की रानी को घर कौन लेके जाएगा। और साथ ही साथ में ये आप यहाँ की मैनेजमेंट को मैं दाद देना चाहूंगा, क्योंकि आप मुझे हर एक प्रोफेशनल क्रिकेट फॉर्मेट पे देखते हैं, मैं बार बार जिक्र करता हूं, आपकी मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो आपकी लीग स्ट्रांग है, आपकी मैनेजमेंट अच्छी है तो आपकी लीग अच्छी है। मैनेजमेंट नहीं है तो चाहे आप कितना भी पैसा खर्च कर ले, आपकी लीग किसी काम की नहीं। खान राजा, ऑल द बेस्ट ब्रिज ब्लास्टर। खान राजा की तरफ से मैसेज आई है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू पीपल फॉर जॉइनिंग अस ऑन आवर लाइव सेशन, जितने भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हैं। After 6 overs, the score is 55 for no loss. 6 ओवर की समाप्ति के बाद पहला पावर प्ले समाप्त, स्कोर 55, आदिल ऋषि और वसीम क्रूजी मैदान में मौजूद। अगर पहले मैं याद आ रहा मुझे, सबसे हाईएस्ट टोटल दिया था उन्होंने, शायद 287 का दिया था, 284 to 87 का टारगेट दिया था उन्होंने, जिसमें जाके करारी बल्लेबाजी देखने को मिली थी। और ये लीजिए, बिल्कुल अजहर के पास मौका नहीं है, ऑप्शन नहीं है, अजहर को गेंदबाजी के लिए आना पड़ेगा। जानते हैं मैदान में आदिल ऋषि है और साथ साथ में वसीम क्रूजी, अगर यहां से सफलता दिलाने में सफल हो सकता है गेंदबाज, बेस्ट ऑप्शन अजहर है। अजहर के पास तजुर्बा है, अजहर माइंड गेम खेलने में मशहूर है और ये ज्यादा
माइंड गेम से बल्लेबाज को चकमा देते हैं। भाई इशनाग नहीं है, इशनाग नहीं है, लेकिन इशनाग के अलावा बहुत सारे ऐसे नाग हैं जो डसने में महारत रखते हैं। और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि मेरा एक करीबी दोस्त आदिल खान जो ऑफिशियल फिजियो है, इसलिए हवा में मौका, लेकिन मौका नहीं है। गेंद जाएगी शायद सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए। और एक चौका। मैं बात कर रहा था ऑफिशियल फिजियो जो है आदिल खान, जो मेरे क्लोज फ्रेंड है, मेडिकल स्टूडेंट भी है जीएमसी से। हालांकि बहुत क्लोज है मेरे, जानते नहीं थे कि इमरान भाई कमेंट्री भी करते हैं, आज पहली मर्तबा देखा भी उन्होंने। तो ही इज ऑल्सो डूइंग अ रियली गुड जॉब एंड आई अप्रिशिएट हिम। ही इज ऑल्सो एन एथलीट। बिल्कुल, जहांगीर लोन प्लेइंग 11 में है। नॉर्थ कश्मीर क्रिकेट सेंसेशन प्लेइंग 11 में है। वसीम कासुर भी है, आदिल गंगोली भी, और कश्मीर के अंबानी लगातार हमारे साथ लाइव पे जुड़े हुए हैं। अब्दुल रशीद भट्ट जो कश्मीर क्रिकेट के अंबानी माने जाते हैं। आदिल ऋषि स्ट्रेट शॉट, हवा में मौका, लेकिन फील्डर नहीं है, क्योंकि पहले ही बता चुका था कि फील्डिंग को 30 यार्ड सर्कल से बाहर निकाला जाएगा। बिल्कुल। इसके बाद वादी कश्मीर के और एक वेपन, कश्मीरी जो कमेंट्री के किंग माने जाते हैं, मुजफ्फर डार उर्फ गुज्जर, जो प्रोफेशनल कमेंटेटर है, जो मेरे भाई भी है, एक साथ हर एक ऑफिशियल लीग्स पे पार्टिसिपेट कर चुके हैं। वो भी शॉर्ट टाइम में आपके साथ जुड़ेंगे। हवा में गेंद, मौका नहीं। अजहर के हाथ में मुकाबले की दौड़ है। स्कोर 61। 7वां ओवर मुकाबले का जारी। 3 गेंदें समाप्त, 3 अभी भी बाकी। सामना करेंगे वसीम क्रूजी। आदिल ऋषि वन मैन आर्मी। करारा शॉट, फील्डर मौजूद, मिसफील्ड, फंबल और रन चुराने में सफल रहेंगे। ये टीम खतरनाक है। खतरनाक नहीं, मैं तो कहूंगा ये टीम बम ब्लास्ट है, किसी भी टीम के ऊपर फूट सकता है। और यहाँ पे अगर अपोजिट टीम की बात करें, तगड़ी टीम है। शेप ऑफ फिटनेस, आसिफ बख्शी, असमत फयाज, अजहर, बिलाल पोलार्ड अपोजिट टीम में खेल रहे हैं। कोशिश यही रहेगी कि कम से कम टारगेट देखने को मिले इस मुकाबले के अंदर। अटकी विकेट, कदमों का इस्तेमाल, पीछे फील्डर मौजूद है और 1 रन का इजाफा, और जिसके थ्रू आप ऑफिशियली लाइव मुकाबले का मजा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग, ये आपको शायद गूगल प्ले स्टोर से भी मिल जाएगी, वहां से सर्च कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। ऑफिशियल ऐप है जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग की। और ये लीजिए, बोल्ड कर दिया। पहला झटका मैं पहले ही बता चुका था, अजहर के पास तजुर्बा है, अजहर के पास एक्सपीरियंस है, ये जानता है कि विकेट की तलाश जो है कैसे दिलानी है। वसीम क्रूजी को चलता बना करेंगे। पहला विकेट नंबर फर्स्ट अजहर ने दिला दिया शेप ऑफ फिटनेस को। आमिर दीन शेप ऑफ फिटनेस में मौजूद है, डेंजर प्लेयर है वो भी। आज मुकाबला करारा है, बल्लेबाजी के लिए आगे, और एक वेपन, शॉर्ट वेपन माना जाता है ये वसीम कासरू। जितनी तारीफ की जाए इनकी कम है।
वसीम कासुर आया है बल्लेबाजी के लिए नंबर 3। अजहर के पास तजुर्बा है। जब अजहर के हाथ में मुकाबले की दौड़ थमा दी गई, मैंने पहले ही बोला था अजहर के अलावा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं यहां से झटका दिलाना, ब्रेक थ्रू दिलाना, जिसकी तलाश थी, प्यास थी शेप फिटनेस को, वो अजहर दिला सकते हैं और दिलाने में सफल भी रहे अजहर। अजहर की बात करें, अभी तक अपने कोटे का डाल रहे हैं दूसरा ओवर, शायद 2 ओवर डाल चुके हैं और गेंदबाजी की दौड़ जो है अब थमा दी गई है जुनैद के हाथ में। बेस्ट ऑफ लक ब्रिज ब्लास्टर गुजामा अशमीर की तरफ से कमेंट आया इनके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। After 7 overs, the score is 63 for the loss of 1 wicket. आदिल ऋषि बल्लेबाजी लंबी लाइन है ब्रिज ब्लास्टर की टीम में बल्लेबाजी की। वसीम कासरू के बाद गंगोली भी है, जहांगीर लोन भी है और तगड़ी टीम है इनके पास। और शेप फिटनेस के आमिर दीन, अजहर, असमत फयाज, आसिफ बख्शी, ये करारी टीम है। ये भी प्लेयर्स है शेप फिटनेस के अंदर जो मुकाबले को पलटना जानते हैं। लेकिन तगड़ी टीम है। जम्मू कश्मीर का जो टॉप 10 वेपन है उसमें केवल जहूर सोफी और आबिद नबी को छोड़ा है ब्रिज ब्लास्टर ने। वाइड का इशारा शायद जरूर आएगा, बिल्कुल सही निर्णय। गेंद को उठाना चाहते थे लेकिन लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर गेंद थी और वाइड का इशारा अंपायर का। और बिल्कुल इसके बाद आप बाहुबली को कैसे भूल सकते हैं। गौहर बाहुबली भी ब्रिज ब्लास्टर के अंदर मौजूद है, उनका आना भी बाकी है अभी। माफी चाहेंगे, वो लिया। अच्छा तगड़ा शॉट था आदिल ऋषि का स्ट्राइक रोटेट करने में। वन एंड ओनली मैन आमिर दीन, लव यू फ्रॉम प्रीरी। बट जुबैर की तरफ से आमिर दीन के लिए कमेंट आया है। तगड़ी टीम है, मुकाबला तगड़ा है। किसका पगड़ा किस पे बारी रहेगा आने वाले वक्त में समझ आ जाएगा। भाई दिव्य, आपके पास लाउड स्पीकर नहीं है, ना तो आपके पास कॉर्डलेस माइक है, आपको डायरेक्टली करना पड़ता है इशू। मैं यूज करते ना। हवा में गेंद जरूर थी लेकिन गेंदबाज फॉलो थ्रू में थे। स्कोर की बात करें 66, 1 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर मुकाबले का जारी है। आदिल ऋषि टीम के कप्तान मौजूद क्रीज पे। आदिल ऋषि की बात करें, 35 रन बना के खेल रहे, 28 गेंदों का सामना किया है और वसीम कासरो भी आए हैं। शॉट और ये लीजिए हवाई फायर, जिसको कहते हैं AK-47 आदिल ऋषि के हाथ में और कभी भी चलाना जानते हैं। गेंद को हवाई यात्रा कराना बिना टिकट के आदिल ऋषि से ज्यादा कौन जानते हैं। फिलहाल लीजिए हवाई फायर आदिल ऋषि के बल्ले से और गेंद सीधे तारामंडल में। क्या तगड़ा शॉट ऋषि की तरफ से। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। गेंदबाज की दाद देनी पड़ेगी। इससे पहले आदिल ऋषि ने गेंद को हवाई यात्रा कराया था, सीधे तारामंडल की ओर रुख कराया था बिना टिकट के, और इसके बाद अच्छी वापसी गेंदबाज की। जितने भी मुकाबले का मजा ले रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ साथ, पेज को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर भी करें ताकि आने वाले मुकाबलों का आप आनंद लें। फिर से ये लीजिए, जिसकी चर्चा हो रही थी वही होता हुआ अंपायर का इशारा, सीधे तारामंडल, हवाई फायर और एक छक्का आदिल ऋषि के बल्ले से और गेंद 106 किलोमीटर दूर छक्का आदिल ऋषि के बल्ले से वाजिबा। और बल्ले से देखे आवाज भी कितनी मधुर आई। मैं पहले ही बता चुका हूं आदिल ऋषि आपके मुकाबले के 8-10 ओवर खेल के आपके मुकाबले का रुख बदल के रख देंगे। आपको कोशिश लगातार गेंदबाजों की होनी चाहिए कि आदिल ऋषि की विकेट को कैसे डग आउट का रास्ता दिखा दे।
का शॉट, हवा में गेंद, पीछे फील्डर, अरे लीजिए, जिसकी तलाश थी, प्यास थी पूरी टीम को, वो दिलाने में सफल रहे जुनैद। 2 छक्के खाए तो जरूर, लेकिन चलता बना किया क्रिकेट सेंसेशन ऑफ कश्मीर आदिल ऋषि को, टीम के कप्तान। निराशा कदमों के साथ डग आउट की ओर वापस। स्कोर केवल 3 रन दूर थे अपने अर्धशतक से। 47 रन बना के डग आउट चले, 31 गेंदों का सामना किया। After 8 overs, the score is 78 for the loss of 2 wickets. आदिल ऋषि के विकेट की तलाश थी पूरी शेप ऑफ फिटनेस की टीम को। जानते थे ये मुकाबले का रुख ही बदलते हैं, पहली चाहे बल्लेबाजी करे या गेंदबाजी, इनका विकेट लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। और आदिल खान आ चुके हैं बल्लेबाज, आसिफ खान आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए, नए बल्लेबाज नंबर 4 पे। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 78, 2 विकेटों के नुकसान पर। 12 ओवर का खेल अभी भी बाकी। टॉस जीता ब्रिज ब्लास्टर ने, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अभी तक अच्छी शुरुआत कहेंगे। 2 विकेट गंवा को जरूर चुके हैं, लेकिन अभी बाकी बल्लेबाजों का आना बाकी है। वसीम, कासुर और आसिफ खान अब नई बल्लेबाज है। और डेफिनेटली यहां से कोशिश जरूर रहेगी कि बल्लेबाजों को ज्यादा खेलने ना दे, क्योंकि दोनों बल्लेबाज नए स्ट्राइक पे है। 1-2 ओवर तो जरूर लेंगे यहां से पिच को देखने में कि किस प्रकार की गेंदबाजी देखने को मिलेगी। अच्छी दाद देनी पड़ेगी युवा गेंदबाज जुनैद की, जिन्होंने आदिल ऋषि जैसे बल्लेबाज को डगआउट का रास्ता दिखाया। तौफीक मीर हमारे साथ जुड़े हैं, आमिर अकबर हमारे साथ जुड़े हैं, शेख शाहिद हमारे साथ जुड़े हैं, सोफी सुहेल, ट्रैवल्स उबैद, शेख शाहिद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू पीपल फॉर जॉइनिंग अस ऑन आवर लाइव सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया और माफी चाहेंगे अगर हम किसी का कमेंट यहां से ऐड न कर पाए। आप बने रहिए हमारे साथ, कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स भी साथ साथ रीड करने की, अगर आपकी मैसेज किसी प्लेयर के लिए हो उन तक कन्वे करने की। As I commentary show, well, thank you so much, guys. We are trying our best from our side, but it's a responsibility being as a professional. That's हमारा प्रोफेशन जो है इजाजत नहीं देता, बहुत जगह पे बिजी रहते हैं, लेकिन पैशन रोक नहीं पाता। वेल, शुक्र अदा करते हैं हम इनका भी। वी आर रियली थैंकफुल टू होल मैनेजमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग एंड स्पेशली all the management of British Blasters as well invite us here to entertain all the viewers who are watching us on our live. Thank you so much all of you people. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंशाल्लाह कोशिश उम्मीद है हमें कि आने वाले वक्त में इस लीग के अंदर अगर 16 टीम फर्स्ट एडिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आने वाले सेकंड एडिशन में 24 टीमें पार्टिसिपेट करने को देखने को मिले और टीमें जो है बढ़ जाए। बेस्ट चीज ये है आपकी मैनेजमेंट स्ट्रांग हो, आपके मैनेजमेंट के अंदर जो है कॉम्पिटिशन होनी चाहिए, आप प्रोफेशनल क्रिकेट को की ओर तवज्जो ज्यादा दें, आपके लिए खुद ब खुद जो है वो प्रमोट होती जाएगी दिन भर इंशाल्लाह। और हमारी कोशिश जब भी आपको हम लोग की जरूरत हो, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू पीपल। these are all our stars, so we are trying to contribute something from our side so that कि हम भी अपनी तरफ से थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें इन युवाओं को या हमारे इन टैलेंट को सपोर्ट करने में। वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर, बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू, थैंक यू सो मच। रमीज के हाथ में मुकाबले के दौरान स्पिन गेंदबाजी को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। ऑफ स्पिनर गेंदबाज है रमीज। इससे पहले तेज गेंदबाजी देखने को मिली थी, वसीम कासुर आया है तो स्पिन गेंदबाजी को अटैक पे थान पर गार्ड पर निशाने पर लगा दिया। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी गेंदबाजी। यहां से कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा रन बनने ना दे, क्योंकि इसके बाद जो घातक बल्लेबाजी जो स्क्वाड है ब्रिज ब्लास्टर का, वो 2 ओवर 3 ओवर 4 ओवर में 70-80 भी बना सकते हैं, उनके अंदर क्षमता है। बल्ला चलाना चाहते थे लेकिन शॉर्ट पॉइंट फील्डर तैनात। 30 यार्ड सर्कल के अंदर अगर फील्डिंग देखेंगे, क्या फील्डिंग सजाई है
अपनी गेंदबाजी के लिए। डीप स्क्वायर लेग भी मौजूद है और ये आप देख सकते हैं जबरदस्त मुकाबला। अरे लीजिए कि स्वीप करना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन फर्क नहीं कर पाए। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत इस युवा गेंदबाज की। और ये आप रोमांचक ग्राउंड, क्रिकेट खूबसूरत मैदान, कचाकच भरा मैदान, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नजारा है इस मैदान का, जो पूरे कश्मीर के अंदर बहुत कम देखने को मिलता है, जिसके लिए हमारा टैलेंट तरसता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स, ऐसे मैदान जो है वो देखने को मिले। बट उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भी ये मैदान जो है ये क्रिकेट सब टैलेंट को प्रमोट करने के काम आ जाए। और शुक्रगुजार है हम ग्रीन वैली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का भी, जिन्होंने ऐसा स्टेप लिया। बहुत बहुत शुक्रिया इन लोगों का। और कश्मीर का इतिहास आप लोगों को कभी भूल नहीं सकता। बिलाल बिन बिलाल हमारे साथ है, जाहिद हुसैन हमारे साथ जुड़े हैं, शेख शाहिद, नसीर वानी, लोन जैन, जितने भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हैं, लाइव का मजा ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 78, 2 विकेट के नुकसान पर। After 9 overs, the score is 78 for the loss of 2 wickets. मैं अपनी तरफ से मुजफ्फर डार साहब गुजर से भी गुजारिश करूंगा कि वो प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। कश्मीर के किंग है ये, कमेंट्री के प्रोफेशनल कमेंटेटर है जम्मू कश्मीर वैली के। इनकी वजह से मैं सीखा हूँ 2-3 सालों से लगातार। हम जहां पे भी जाते हैं एक साथ जाते हैं, सो आई प्लीज वेलकम हिम कि वो कमेंट्री बॉक्स में ज्वाइन करें, आप लोगों को एंटरटेन कराए। फिर से आप लोगों के पास मैं फिर से आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। शुक्रिया अहमद इमरान। पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं मारूफ सर को। जितने भी मैनेजमेंट में लड़के हैं उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। उन्होंने एक अच्छा फॉर्मेट तैयार किया है नौजवान खिलाड़ियों के लिए। क्रिकेट की बात करेंगे, टॉस जीतकर ब्रिज ब्लास्टर्स के कैप्टन ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आदर्शी ने एक बेहतरीन बल्लेबाजी की, उसके बाद वो चलता बने। वसीम क्रूजी ने भी खूब साथ दिया आदर्शी का। अभी तक स्कोर की बात करेंगे, स्कोर 85, स्कोर 89, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 10वें ओवर का खेल जारी। गेंदबाज की दौड़ जो है राजा मुजफ्फर के हाथों में। अच्छी गेंद, कट कर दिया गेंद को। गेंद भी है स्वीपर क्षेत्र में, वहां पर बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा, टाइप मारकर गेंद को रोका। एक रन पूरा किया, 2 रन की मांग, रन के लिए आगे। रन आउट की अपील हुई लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकारा। बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा, लंबे कद के खिलाड़ी बिल्कुल बाउंड्री के नजदीक मौजूद, अपने बाई की ओर तकरीबन 3 फुट के फासले पर डाइव मारकर गेंद को रोका और दोनों बल्लेबाजों ने तब तक 2 रन पूरे किए।
After 10 overs, the score is 91 for the loss of 2 wickets. 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 91, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला आदिल रशीद ने काम किया। उसके बाद वसीम क्रूजी ने भी साथ दिया। अब बल्लेबाज जो विकेट पे मौजूद है वो है वसीम काचरू और उसके साथ है आसिफ खान। अभी भी आने वाले बल्लेबाज है जहांगीर लोन, बारामूला एक्सप्रेस, वो भी ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। अगर मेरे बस में होता मैं उन्हें टॉपर में बिठाता फिर जाके भेजता आईपीएल के मैदान में। वैसे बल्लेबाज है जहांगीर लोन। बिल्कुल 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 91, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अगर बात करेंगे शेप ऑफ फिटनेस की, वापसी की उन्होंने आदिल रशीद का विकेट निकाला, वसीम क्रूजी को चलता किया तो वापसी की है। यहाँ पर एक या दो झटके देने में अगर सफल रहती है शेप ऑफ फिटनेस की टीम तो यकीनी तौर पर 170 160 के आसपास देर कर सकती है ब्रिज ब्लास्टर्स की टीम को। लेकिन अभी भी उनके पास तगड़े तगड़े बल्लेबाज मौजूद है। अगर ब्रिज ब्लास्टर्स की बात करेंगे उनके पास, अगर उनकी प्लेइंग 11 की बात करेंगे, आदिल ऋषि टीम के कैप्टन, आसिफ खान, फैसल डार, ओएस बाबा, वसीम काचरू, ओएस बगा, वसीम क्रूजी, जहांगीर लोन, रूफ चाडूरा, आदिल गंगोली, समीर रशीद। और अगर शेफ ऑफ फिटनेस की बात करेंगे, उनके जो आज 11 खिलाड़ी टीम में मौजूद है वो है आदिल खान, बिलाल हसन, बिलाल पोलार्ड, राजा मुजफ्फर, रमीज, आमिर दीन, अजहर, आसिम, आदिल, आसिफ बख्शी और रियाज अहमद। अभी तक शेप ऑफ फिटनेस के 2 मुकाबले खेले हैं। एक मुकाबले में जीत हासिल की, दूसरे मुकाबले में घुटने टेक के ग्रीन वैली के मैदान में। और बात करेंगे ब्रिज ब्लास्टर्स की टीम ने इससे पहले एक मुकाबला खेला, उसमें जीत हासिल की ग्रीन वैली के मैदान में। टॉस जीतकर आदिल रशीद ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजों ने सहारा दिया, काम चलाया। अब प्लेटफॉर्म तैयार है इन 2 बल्लेबाजों के लिए। जो बल्लेबाज क्रीज में मौजूद है वसीम काचरू और दूसरे आसिफ खान। पिछले मुकाबले में ब्रिज ब्लास्टर्स की टीम ने 283 रन बनाए थे। आज कितने रन बनाएंगे? गेंदबाजी के लिए बुलाए गए हैं रमीज राजा। लगा दिया कान पर, गात पर, निशाने पर, अटैक पर, हमले पर, मोर्चे पर। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, अपने बल्ले को गेंद से जुदा किया, अपने बॉडी को गेंद से जुदा किया और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। रफ्ता रफ्ता ग्रीन वैली के मैदान में करो या मरो, कांटे का टक्कर, घमासान, गुत्तम गुत्ता, युद्ध जारी। इस बार फ्रंट पे आकर केवल गेंद को बल्ले पे आने दिया, टैप किया गेंद को, गेंद दी है। शॉर्ट में कहा जाएगा, वहां पर खिलाड़ी तैनात। जब खिलाड़ी गेंद को रोका, दोनों बल्लेबाजों ने आंख में इशारा किया और दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया। आसमान पर छलकता हुआ मौसम, जमीन पर हरी हरी घास बिखरी हुई, नाला सिंध गांधरबल से ठंडी ठंडी हवाएं चलती हुई, गिल्डर हजरबल से मध्यम मध्यम हवाएं चलती हुई और ग्रीन वैली के मैदान में पार या पार जारी। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए रमीज राजा तैयार, 4 कदमों के फासले पर दौड़ी, तेज दौड़ी, आपको पार किया। दिलस्कोप कहो, दिलशान कहो या पोलो कहो, गेंद को निकालने में कामयाब। हालांकि स्ट्रोक में टाइम तो किया था, प्लेसमेंट अच्छी बैठी थी, लेकिन शक्ति स्ट्रोक में ज्यादा नहीं थी। शॉर्ट फाइनल से खिलाड़ी दौड़ता हुआ आया, गेंद को उठाया, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर एक रन पूरा किया। ब्रिज ब्लास्टर्स की बात करेंगे, ब्रिज ब्लास्टर्स के पास तगड़े तगड़े बल्लेबाज है, तगड़े तगड़े रेस के घोड़े। अगर इनकी टीम की बात करेंगे, इनके पास तो टस के बादशाह, कैरम बोर्ड के स्ट्राइकर आदिल रशीद के टीम में मौजूद है। वसीम काचरू, ये भी ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। इनके जो शॉट है वो आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे, सिलेबस में भी इनके शॉट नहीं मिलेंगे। इनके बल्ले से मुद्रा आवाज निकलते हैं। इस बार किसको छोड़ा, उठा दिया गेंद को और गेंद निकली है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। अभी तक अंपायर का इशारा चौके का शायद आया है और 4 रन जुड़ता हुआ और खाते में। स्कोर की अगर बात करेंगे, After 11 overs, the score is 97 for the loss of 2 wickets. स्कोर 97, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। वसीम काशरू अभी अभी बल्लेबाजी के लिए आए हैं।
ये भी ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, घातक बल्लेबाज, विस्फोटक बल्लेबाज। ये तो पहले टाइम निकालेंगे, एक रन बनाकर, दो रन बनाकर पे बैठेंगे, विकेट को बचाते रहेंगे, नजरें टिकाएंगे, फिर जाके इनके पैर तो जरूर चलेंगे, फिर जाके लग सकती है धुन, मिलेगी सुर, अब जाके बजेगा संगीत। ग्रीन वैली के मैदान में छोटे कद के गेंदबाज, स्पिन गेंदबाज, गेंदबाजी के लिए तैयार। आसिफ आसिफ बख्शिया है गेंदबाजी के लिए। टीम के कैप्टन के हाथों में गेंद थमा दी, चाहते हैं कि यहाँ पे विकेट मिले। छोटे रन के साथ माथे का सारा पसीना उठाकर गेंद की शेन पे लगाया, चाहते हैं कि गेंद दाया बाएं की ओर गेंद घूमे। अच्छी गेंद सीधे बल्ले के साथ गेंद को ड्राइव किया, गेंद गई लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, खिलाड़ी तैनात, दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर एक रन पूरा किया। अगर इस मैदान की बात करेंगे, ज्यादा लंबा मैदान नहीं है, बड़ा मैदान नहीं है। अगर बाउंड्री की बात करेंगे, तकरीबन 50 या 55 मीटर की बाउंड्री होगी यहाँ पर। तिरछे बल्ले के साथ के सारे गेंद को मोड़ा, गेंद दी है मिड क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात, दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर एक रन पूरा किया। स्कोर बढ़ता हुआ 99, दो खिलाड़ियों के नुकसान पर 12वें ओवर का खेल जारी। आसिफ बख्शी गेंदबाजी के लिए तैयार, अंपायर को फाड़ के उठा दिया गेंद को, गेंद हवा में जरूर, और एक बेहतरीन कैच पकड़ा है लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने। खिलाड़ी वहां पे तैनात, कोई भी चूक नहीं बिलाल अहमद से, कोई भी गलती नहीं, और चलता किया वसीम काचरू को। वसीम काचरू को जाना होगा वापस, मायूस कदमों के साथ, निराश कदमों के साथ, बोचल कदमों के साथ, आहिस्ता आहिस्ता डगआउट की ओर आवा दवा। इस बार ऊपर खिला दिया था गेंद, ललचाया बल्लेबाज को, मौका ताड़ा था, गेंद को बल्ले पे लिया था, शक्ति स्ट्रोक में ठीक ठाक लगाई थी, लेकिन पेस में ठीक ठाक नहीं बैठी, और लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी ने कोई भी गलती नहीं की, कोई भी चूक नहीं की, और चलता किया बल्लेबाज को। चलिए, जिसका था मुझे इंतजार, जिसकी कर रही है दुनिया इंतजार, ये दो बल्लेबाज, अगर मैं बात करूंगा इन दो बल्लेबाजों की, एक है महेंद्र सिंह धोनी, दूसरे है जहांगीर लोन, जो बल्लेबाजी के लिए आते हैं या तो 6 नंबर पे या तो 7 नंबर पे, लेकिन दोनों के बल्ले से निकले हैं 10,000 से ज्यादा रन। अब आए हैं बारामूला एक्सप्रेस, जहांगीर लोन बल्लेबाजी के लिए, ये तो खिलाड़ी है। सुबह सवेरे उठकर ये तकरीबन दौड़ते हैं 10 किलोमीटर, सुबह सवेरे उठकर दौड़ लगाने के बाद ये आते हैं घर, फिर जाके करते हैं नाश्ता, वो भी तगड़ा, 2 केले 6 अंडे, और पीते हैं 4 किलो भैंस के दूध, तब जाके इनका बल्ला चलता है मैदान में। और बल्लेबाजी की अगर बात करेंगे, ये तो वादिया कश्मीर की शान है, वादिया कश्मीर की जान है। जहांगीर लोन आए हैं बल्लेबाजी के लिए। और अगर गेंदबाजी की बात करेंगे, बेहतरीन गेंदबाजी, शेफ ऑफ फिटनेस की, जिस विकेट की दरकार थी, जहां पे जरूरत थी, तलाश थी, वहां पे ये गेंदबाज काम कर रहे हैं। टीम के कैप्टन जो है, टीम की जो लीड कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, उनका दिमाग चल रहा है कंप्यूटर की तरह, जहां पे गेंदबाज को इस्तेमाल करना है वहां पे कर रहे हैं, और विकेट निकाल रहे हैं। कोशिश इनकी यही होगी 160-70 के आसपास ढेर किया जाए। बिग बॉस की टीम को इस बार जहांगीर लोन के बल्ले से निकली है गोली, और गेंद गई है गुड़गांव में, ऊपर खिला दिया था सीधे बल्ले के साथ, गेंद को उठा दिया, मुद्रा आवाज बल्ले से आई, और गेंद गई सीधे गुड़गांव में 6 रन के लिए। मैंने पहले इसकी चर्चा की थी, जहांगीर लोन एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, इनके बाइसेप्स की बात करेंगे, तकरीबन 19 इंच बाइसेप्स है, और चन्ना खाने वाले खिलाड़ी है, इनके बल्ले से गेंद टकराएगी, टूर टूर हो जाएगी। गेंदबाजी के लिए तैयार, दौड़े, अंपायर को पार किया, अच्छी गेंद, इस बार बल्ले का फेस खोला, गेंद को धकेला डीप पॉइंट क्षेत्र में, इसे स्वीपर भी कहा जाएगा, वहां पर खिलाड़ी तैनात, आंखों में इशारा, और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा किया। After 12 overs, the score is 106 for the loss of 3 wickets. 12 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर की अगर बात करेंगे, स्कोर 106, अभी भी बचे हैं 8 ओवर का खेल, 48 गेंदे, 48 गेंदों में अगर ब्रिकबास की टीम 80-85 रन बनाने में सफल हो जाती है, तो टीम पहुंचेगी 200 के आसपास। अगर यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करेंगे, वापसी करेंगे, गेंद को नचाएंगे, डिस्को कराएंगे गेंदबाज, अब जाके 1-2 झटका देने में सफल हो जाते हैं, तो 48 गेंदों पे अगर इनकी टीम 70 या 65 रन खर्च करती है, तो पौने 200 के आसपास रोक सकते हैं बिग ब्लास्टर्स के कारतूसों को, बिग ब्लास्टर्स के जवानों को, तो मौका मिल सकता है शेप ऑफ फिटनेस को। गेंदबाजी में परिवर्तन,
तब्दीली लगा दिया थान पर, गत पर, निशाने पर, अटैक पर, हमले पर अजहर भट्ट को। अजहर भट्ट की बात करेंगे, ये गेंद को नचा सकता है, ये गेंद को डिस्को करा सकता है, इस गेंदबाज में क्षमता है। अजहर भट्ट गेंदबाजी के लिए तैयार, उठा दिया गेंद को, सामने है जहांगीर लोन और इस बार पीछे चले गए जैसे चलता है मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान के भारतीय विराट कोहली। पीछे गए, अपने आप को रूम दिया, बल्ले को रूम दिया, अपने पैर जो इनके पैर है उनको पीछे धकेला, फिर जाके इनसाइड आउट खेला, गेंद दिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीधे तारामंडल में 6 रन के लिए। अब जाके मिली है सुर, लगी है धुन, बजा है संगीत ग्रीन वैली के मैदान में अजहर भट्ट के सामने वदिया कश्मीर के कातलाना बल्लेबाज जहांगीर लोन। जहांगीर लोन जानते हैं यहाँ पे रन बनाना है जरूरी। अजहर भट्ट दूर वाले छोर से दौड़ी, तेज दौड़े, अंपायर को पार किया, अच्छी गेंद गुल्ले के स्कोर पर गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी बहुत उछली, बल्लेबाज ने इंतजार किया और बल्ले पे गेंद को आने दिया, पॉइंट की ओर गेंद को धकेला, वहां पर खिलाड़ी ने गेंद को रोका, खासा दूर गेंद थी और तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 113, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 13वें ओवर का खेल जारी। अजहर भट्ट को टीम के कैप्टन ने पहले तो इस्तेमाल किया था, वहां पे शायद झटका देने में सफल रहे थे लेकिन कैच ड्रॉप हुआ था और इस बार अजहर भट्ट के हाथों में एक बार फिर गेंद थमा दी टीम के कैप्टन ने। अजहर भट्ट गेंदबाजी के लिए तैयार, थोड़ी अंपायर को पार किया, इस बार सटीक बॉलर का इस्तेमाल, ज्यादा गेंद उछली नहीं, पीछे चले गए, सरकते गए बैकफुट की ओर, पुल करने की कोशिश, ठीक ठाक गेंद बल्ले पर नहीं बैठी और गेंद गई है काउ कॉर्नर कहा जाएगा, शॉर्ट काउ कॉर्नर या शॉर्ट फॉरवर्ड कहा जाएगा। वहां पे खिलाड़ी खासा दूर थे, गेंदबाज ने खुद ही गेंद को उठाया, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। विकेट कीपर के अलावा तीसरी स्लिप, गली, बैकफुट पॉइंट, डीप स्वीपर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, इस बार बल्ले का बाहरी किनारा और गेंद निकली है बाउंड्री की ओर। अंपायर ने परिंदे की तरफ पर फैलाए चौके का इशारा और इसी चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 118, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 13वें ओवर का खेल जारी। रन तो बनेंगे, रन रुकने का नाम नहीं लेंगे जब तक जहांगीर लोन विकेट पे है, ये तो मारते जाएंगे। ऑन साइड हो, ऑफ साइड हो, डीप पॉइंट हो, मिड ऑफ और मिड ऑन या मिड विकेट, कहीं पे भी मार कर सकते हैं जहांगीर लोन। अजहर भट्ट इस बार अच्छी गेंद, सटीक बाउंसर का इस्तेमाल, देखा जहांगीर लोन ने क्रीज को छोड़ा, बेहतरीन गेंदबाजी और बेहतरीन वापसी। अजहर भट्ट दोहरा एक बेहतरीन गेंदबाज है, बेहतरीन ऑलराउंडर रहने वाले हैं जोकरा के और अभी तक बल्ले से भी रन बना है अजहर भट्ट ने और गेंदबाजी भी कर रहे हैं काम पे। लेकिन अभी तक अगर यहाँ पर बात की जाए विकेट की सख्त दरकार, विकेट की जरूरत है यहाँ पर शेप ऑफ फिटनेस की टीम को। जहांगीर लोन ये तो कभी ऑन साइड पे मारते हैं, कभी ऑफ साइड पे, कभी मिड का क्षेत्र में, कभी लॉन्ग ऑफ पे, ये तो बेहतरीन खिलाड़ी है। लेकिन यहाँ पे शेप ऑफ फिटनेस की बात करेंगे, विकेट की सख्त दरकार है। After 13 overs, the score is 118 for the loss of 3 wickets. स्कोर 118, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर बचा हुआ है 7 ओवर का खेल। 7 ओवर में क्या शेप ऑफ फिटनेस की टीम वापसी करेगी, क्या हो जाएगी इनके बल्ले बल्ले, ये तो वक्त फैसला करेगा, 7 ओवर का खेल फैसला करेगा। गेंदबाजी के लिए बुलाए गए हैं आसिफ रमजान, लगा दिया थान पर, गात पर, निशाने पर, अटैक पर, हमले पर, मोर्चे पर लगा दिया घेरा, बिछा दिया पहरा, विकेट की तलाश, विकेट की प्यास। आसिफ खान गेंदबाजी के लिए तैयार, सामने है आसिफ खान, गेंदबाजी आसिफ बख्शी, इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को इस बार खेला है, दोनों बल्लेबाज रन के लिए भागे और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। आसिफ बख्शी एक बार फिर गेंदबाजी के लिए तैयार, सामने है जहांगीर लोन, अगर मेरे बस में होता इन्हें चौपर में बिठाता फिर जाके इनको डालता आईपीएल के मैदान में और ये नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से आया है, गेंद गई है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया, नो बॉल का इशारा और बल्लेबाज को मिलेगी फ्री हिट। बल्लेबाज के लिए मौका, जहां भी चाहेंगे गेंद को मार सकते हैं, ये मौका बना है बल्लेबाज के लिए।
आसिफ रमजान दौड़े अंपायर को पार किया, इस बार क्रिस को छोड़ा था। थोड़े बहुत अगर बल्लेबाज की बात करेंगे, डर के साथ बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे घंटे इसके बाद फेवर का खेल बचा है। लोन क्रीज पे मौजूद अभी भी आने वाले बल्लेबाज बंगोली हो, आमिर सोफी हो, बल्लेबाज आने वाले हैं। पीछे बचा है सब कुछ, लेकिन यहाँ पे काम करना होगा बल्लेबाजों को। टेप ऑफ फिटनेस की बात करेंगे, यहाँ पे विकेट करना होगा, चाहे वो जहांगीर लोन की विकेट हो या आसिफ खान की। अगर वापसी करनी है तो अभी करनी है, आज ही करनी है। अगर वापसी नहीं हुई किसी भी टीम की तो दूसरा होगा बोल। अच्छी गेंद, अंदर आती हुई गेंद, रक्षाबंधन के साथ गेंद को निकाला, गेंद की है चोट पॉइंट क्षेत्र में। खिलाड़ी गली क्षेत्र से आया, गेंद को उठाया, गेंद को फीड किया। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया। आसिफ खान गेंदबाजी के लिए तैयार, बोल्ड कर दिया और वापसी हुई। जहांगीर लोन को जाना होगा डगआउट वापस। एक बार नीचे रहती हुई गेंद, मिडकट क्षेत्र में गेंद को उठाना चाहते थे, लेकिन जहांगीर लोन के पैर नहीं चले और क्लीन बोल्ड हो गए। जहांगीर लोन आहिस्ता आहिस्ता मायूस कदमों के साथ, निराश कदमों के साथ, बोझल कदमों के साथ डग आउट की ओर आवा दावा। और अगर बात करेंगे इस टीम की रीढ़ की हड्डी थे ये जहांगीर लोन, और बेहतरीन वापसी, शेप ऑफ फिटनेस की, आसिफ खान की जिस विकेट की तलाश थी, दरकार थी, वो निकालने में कामयाब। और जहांगीर लोन गए हैं डग आउट वापस। अब बल्लेबाजी के लिए कौन आएंगे, इस बात की चर्चा जरूर रहेगी। आमिर सोफी, आदिल गंगुली, एक छोटे कद के बल्लेबाज आए हैं। Batsman, please show your jersey number. बल्लेबाजी के लिए आए फैसल डार, और यहाँ पर ब्रिज ब्लास्टर्स को चौथा झटका लगता हुआ। जहांगीर लोन चले गए हैं डग आउट वापस, और टीम की हो गई है यहाँ पे बल्ले बल्ले। यहाँ पे किश्ती फंसी है दरिया जालिम के बीचों बीच, और इस किश्ती को कौन निकालेगा। फैसल डार या विकेट पे बल्लेबाज जो बैठे हैं आसिफ खान। फैसल डार अभी अभी आए हैं बल्लेबाजी के लिए। आसिफ खान भी है बल्लेबाज अभी क्रीज पे। इन दो बल्लेबाज को काम करना होगा, एक पार्टनरशिप की जरूरत है। 30-40 रन की पार्टनरशिप की जरूरत है, वो भी चाहिए 18-20 गेंदों में, तब जाके टीम जाएगी 200 के आसपास। मैदान छोटा है, बाउंड्री बड़ी नहीं है। अगर कोई भी बल्लेबाज क्लिक हुआ शेप ऑफ फिटनेस का, तो हो जाएगी बल्ले बल्ले टीम की। मैदान उतना बड़ा नहीं, बेहतरीन गेंदबाजी, नीचे रहती हुई गेंद, बल्ला ऊपर, गेंद नीचे, बचा हुआ शेषकार विकेट कीपर ने पूरा किया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। After 14 overs, the score is 123 for the loss of 4 wickets.
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप तक लाइव अपडेट्स मुकाबले का मुजफ्फर डार उर्फ गुज्जर जम्मू कश्मीर कमेंट्री के किंग है। वापस मुकाबले की ओर अगर चलते 130 4 विकेट के नुकसान पर, अच्छा 5 विकेट की लेट करा आप Fielder name. दैट वाज अजहर 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 बिल्कुल ये तो किंग है। इनके चेहरे के हेड से ही समझ आता है ऐसा कैच अजहर ही पॉइंट पे पकड़ सकते हैं। फिलहाल 5 विकेट गंवा चुके हैं ब्रिज ब्लास्टर की टीम। दलदल में फंसती हुई गेंदबाजी तगड़ी है। शेप ऑफ फिटनेस की माननी पड़ेगी, दाद देनी पड़ेगी गेंदबाजों की। बड़े बड़े बल्लेबाजों को डगआउट का रास्ता दिखा दिया। नए बल्लेबाज गंगोली आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। आदिल गंगोली तगड़े बल्लेबाज ये भी है। जानते हैं आखिरी ओवर्स में आदिल गंगोली का बल्ला चलता है। नजर कप्तान की ये देखना होगा कि लक्ष्य क्या देंगे शेप ऑफ फिटनेस की टीम को। फिलहाल आदिल गंगोली ये भी गेंद को कभी भी हवाई यात्रा कराते हैं। फिलहाल गेंदबाजी की दौड़ जुनैद के हाथ में। अच्छी गेंदबाजी अभी तक जुनैद की। अच्छी गेंद, पटकी भी गेंद, रन की मांग, यस नो, बच गए। डायरेक्ट हिल लगती तो खाता खोले बिना गंगोली वापस जाते डगआउट। और अच्छा कमबैक और अच्छी वापसी। ओवर समाप्त, 15 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 130। 30 गेंदें अभी भी पहली पारी के बाकी, यानी 5 ओवर्स। आदिल गंगोली और साथ ही साथ फैसल डार के बाजू में क्षमता है। इन्होंने इससे पहले मुकाबले में भी 80 रन जड़े थे अपने बल्ले से। मैं यहाँ अवेलेबल नहीं था लेकिन तभी पता है। After 15 overs, the score is 130 for the loss of 5 wickets. बख्शी गेंदबाजी के लिए आए हैं। आसिफ बख्शी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से बिलोंग करते हैं। अच्छी वापसी करी है और फैसल डार इनके ऊपर जिम्मेदारी है यहाँ से रन बनाने की और साथ साथ में गंगोली के ऊपर। इसी चीज के लिए आज लंबा स्क्वाड है ब्रिज ब्लास्टर के पास। मौका बनाना टीम में प्लेइंग 11 में बहुत मुश्किल ब्रिज ब्लास्टर की टीम के। ठीक है, हवा में गेंद जरूर, फील्डर रन आउट नहीं, थ्रो में गलत थ्रो। जहां पे 1 रन मिलनी चाहिए वहां पे दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज। फिलहाल जितने भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हैं, प्रेडिक्शन दीजिए कितना टारगेट देखने को मिलेगा शेप ऑफ फिटनेस के लिए। आसिफ बख्शी सामना करेंगे इनका फैसल डार। अच्छी गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी, माइंड गेम का इस्तेमाल करते हुए शेप ऑफ फिटनेस की पूरी टीम। दाद देनी पड़ेगी टीम के कप्तान की। आदिल खान टीम के कप्तान है शेप ऑफ फिटनेस के। दाद देनी पड़ेगी इनकी कप्तानशिप की। नीचे उठाना चाहते थे गेंद को, रन आउट का खतरा, विकेट और चलता बना करेंगे। चलिए विकेट नंबर 6, छठा झटका लगता हुआ फैसल डार के रूप में और निराशा कदमों के साथ जाएंगे डगआउट की ओर वापस। खुशी की लहर शेप ऑफ फिटनेस टीम के प्लेयर्स के चेहरे पे। गाजी शबीर हमारे साथ, फिरदौस खान, कश्मीर के अम्बानी, अब्दुल रशीद भट्ट, शाह जहांगीर हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रेडिक्शन दीजिए लक्ष्य यानी टारगेट का देखने को मिलेगा शेप ऑफ फिटनेस के लिए। और मीर सलीम भी आ चुके हैं मैदान में, वेलकम करते हैं इनका। पहली प्रेडिक्शन मीर सलीम की तरफ से आई है कि 150 का लक्ष्य देखने को मिलेगा। गंगोली मैदान में है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन गेंदबाजी की दाद देनी पड़ेगी, कप्तानशिप की दाद देनी पड़ेगी शेप ऑफ फिटनेस की। अच्छी गेंद, शॉर्ट पिच गेंद और स्ट्राइक रोटेट करते हुए मिस फील्ड, पीछे फील्डर तैनात, डीप लॉन्ग ऑफ और 1 रन का इजाफा।
ओवैस बाबा नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी के लिए। रन की दरकार है बिग ब्लास्टर्स की टीम को, जानते हैं छोटा ग्राउंड है। बल्ले का बाहरी किनारा लगा, पीछे फील्डर तैनात सेल्फ में और किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं। आदिल खान का कहना है 170 टारगेट होगा, फिरदौस खान 145। वॉच फ्रॉम मनाली सलीम मंजूर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। गाजी शबीर भट्ट का कहना है 190 का लक्ष्य देखने को मिलेगा। अगला शॉट डीप लॉन्ग ऑफ फील्डर तैनात, 1 रन का इजाफा। ओवर की समाप्ति, 16 ओवर समाप्त, स्कोर 134, 6 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर का खेल बाकी, 24 गेंदे। आदिल गंगोली स्ट्राइक पे मौजूद, नए बल्लेबाज ओवैस बाबा आए हैं। After 16 overs, the score is 134 for the loss of 6 wickets. विराट कोहली अब बारामूला, आमिर दीन खेल रहे हैं शेप ऑफ फिटनेस के लिए। गेंदबाजी की दौड़ थमा दी गई है। खून अहमद का कहना है 165 का लक्ष्य देखने को मिलेगा। मंसूर नबी, लव यू इमरान भाई, लव यू टू ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जुनैद आए गेंदबाजी के लिए। 2 विकेट चटकाने में सफल रहे, 22 रन दिए हैं अभी तक। अच्छी गेंद, इन स्विंग, रन आउट का खतरा लेकिन नहीं। तीसरा ओवर डाल रहे हैं अपने स्पेल का और पारी का 17वां ओवर। आदिल गंगोली के ऊपर नजर रहेगी, गंगोली का बल्ला चलेगा तो अच्छा लक्ष्य देखने को मिलेगा। लव यू मुजफ्फर, बहुत बहुत शुक्रिया उनके लिए भी। स्पोर्टिंग ब्रिज मास्टर बुलजामा हसन रास्ते की तरफ से कमेंट आया है। बट जुमैर ने कहा 170 रन का लक्ष्य देखने को मिलेगा। अच्छी गेंद, गोल्डन स्पॉट, चुना गेंदबाज ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए इक्का दुक्का करके स्कोरबोर्ड को आगे लेके जाते हुए ब्रिज मास्टर्स की टीम। ब्रेक थ्रूज मिले हैं शेप ऑफ फिटनेस की टीम को, बार बार जिक्र करता हूं, दाद देनी पड़ेगी टीम के कप्तान की, किस हिसाब से उन्होंने अपने गेंदबाजों से गेंदबाजी कराई, कब किसे और कहां पे यूज करना है अच्छे से जानते थे गेंदबाज कप्तान इनके। विकेट चोरी, गेंद को उठाना चाहते थे लेकिन मिस कर गए। क्या इशनागा आउट हुआ, वो आज प्लेइंग स्क्वाड में नहीं थे। मुख्तार अहमद ने कमेंट किया 170 रन, 160 रन का लक्ष्य देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू पीपल फॉर जॉइनिंग अस ऑन आवर लाइव सेशन, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ आप लाइक भी जरूर करें, शेयर भी जरूर करें और फॉलो भी जरूर करें। मीर सलीम मुकाबले का मजा ले रहे हुए, गेंदबाजी की दौड़ जुनैद के हाथ में, स्ट्राइक पे ओवैस बाबा मौजूद, विकेट छोड़ी, स्ट्रेट शॉट और अच्छा कम बैक, फॉलो थ्रू में गेंदबाज, कमाल का फील्ड, कमाल का एफर्ट, और यही एफर्ट आपको मुकाबला जिताने में काम आता है। आदिल गंगोली कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल इनके ऊपर भरोसा नहीं है, कब किस दिशा में गेंद को यात्रा कराए बताना मुश्किल। विकेट चोरी, हवा में गेंद, पीछे फील्डर, विकेट नंबर 7 ड्रॉप, कैच ड्रॉप, और यहाँ पे एक तो कैच भी ड्रॉप किया और रन भी, फंबल भी करते हुए डाई मारी थी, आसान सा कैच था, एफर्ट ज्यादा लगाए फील्डर ने और ड्रॉप किया। इक्का दुक्का करके स्कोर बोर्ड को आगे लेके जाते हुए 138, विकेट छोड़ी और अच्छी गेंद। ओवर की समाप्ति, 17 ओवर समाप्त, स्कोर 138, 6 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल बाकी, 18 गेंदे विशेष अभी भी बाकी। After 17 overs, the score is 138 for the loss of 6 wickets. माफी चाहेंगे, 138 रन बना चुके हैं, 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी है। मशवरा जारी है, गेंदबाजी की दौड़ किसके हाथ में दी जाएगी वो देखने लायक होगा। शायद आसिफ बख्शी को, बिल्कुल आसिफ बख्शी को वापस कान पर, घाट पर, निशाने पर, अटैक पर, मोर्चे पर लगा दिया है। 3 ओवर बचे हैं पारी के, 18 गेंदे और नजरें सारी आदिल गंगोली की बल्लेबाजी के ऊपर चाहिए। गंगोली को स्ट्राइक अपने पास रखे, अंत के 3 ओवर है,
रन की दरकार है टीम को। Once again, we are really thankful to all the viewers for watching us live. अरे लीजिए पहली गेंद पे चलिए आसिफ बख्शी डगआउट का इशारा करते हुए डगआउट चले जाइए। गहमा गेमी भी जारी और आदिल गंगोली भी डगआउट। विकेट नंबर 7 बैक टू बैक झटका। झटके लगते हुए ब्रिज ब्लास्टर की टीम को लगता है बल्लेबाजी क्रश होती हुई नजर आ गई ब्रिज ब्लास्टर की टीम की। और ये कह सकते हैं दाद देनी पड़ेगी आसिफ बख्शी की। आते ही गंगोली को डगआउट का रास्ता दिखा दिया। मुकाबला गहमा गेमी का जरूर है। शेप ऑफ फिटनेस की बात करें, तगड़ी गेंदबाजी, सूझबूझ वाली गेंदबाजी। कमाल की गेंदबाजी कहेंगे गेंदबाजों के द्वारा। दाद देनी पड़ेगी शेप ऑफ फिटनेस की गेंदबाजों की। बिल्कुल नजरें आदिल गंगोली के ऊपर थी, लेकिन आदिल गंगोली ने दिया धोखा और शायद भुगतना पड़े पूरी ब्रिज ब्लास्टर की टीम को। पुअर बैटिंग परफॉर्मेंस फर्स्ट गेम Sakshit and now 138 in 17 hours बिल्कुल 287 का लास्ट दिया था पहले गेम में। क्रिकेट इसीलिए कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। कब कहां कैसे पलटे कोई नहीं जानता। नए बल्लेबाज रूप आए, बल्लेबाज रूप बशीर माफी चाहेंगे। अच्छी गेंद, पहली गेंद पे खाता खोलते हुए स्ट्राइक रोटेट करते हुए रन की दरकार है। बख्शी के हाथ में मुकाबले की दौड़। पहली गेंद उठाना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, लेकिन किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं। अंपायर्स की जो आज के ऑफिशियल अंपायर्स है, बैटिंग लाइन फेल हो गई आज, बिल्कुल शेख शाहिद। अरसलान का कहना है ब्रिज ब्लास्टर्स के लिए 150 रन का आंकड़ा काफी है। क्रिकेट फंबल होते हुए फिर से एक रन चुरा ली। रूफ बख्शी, रूफ बट स्ट्राइक पे मौजूद। रूफ बशीर माफी चाहेंगे। 5 गेंदें समाप्त, 1 गेंद अभी भी बाकी। 18 ओवर मुकाबले का जारी है। ब्रिज ब्लास्टर की टीम फंस चुकी है दलदल में, निकलना मुश्किल है। पहली पारी है, कुछ बताना मुश्किल। और ये लीजिए क्या करारा शॉट, गेंद सीधे तारामंडल में, हवाई फायर और अंपायर का इशारा, सीधे छक्का। मुश्किलें जरूर थी, शॉर्ट पिच गेंद थी और आखिरी गेंद पे छक्का दिया। रन की दरकार थी पूरी टीम को और दिलाने में सफल रहे। After 18 overs, the score is 146 for the loss of 7 wickets. आज जैसे अभी इन्होंने कहा कि पहले मुकाबले में 287 का लक्ष्य दिया था। आज इशनागा भी प्लेइंग 11 में नहीं है, आमिर शोफी भी प्लेइंग 11 में नहीं है, जावेद जडू भी प्लेइंग 11 में नहीं है। ये 3 खिलाड़ी अभी भी प्लेइंग 11 से बाहर है। और ये लीजिए फिर से पीछे फील्डर तैनात और ड्रॉप। दूसरा तीसरा कैच ड्रॉप किया है पहली पारी में। बताते चलूं साबली फील्डर्स को, कैच ड्रॉप करेंगे अंत में आपको समझ आ जाएगा कि मैच ड्रॉप किया था। रूल है क्रिकेट का। एक सौ 19वां ओवर पारी का जारी है। जुनैद अपने कोटे का डाल रहे शायद अंतिम ओवर और पारी का 19वां ओवर।
फुल टॉस डिलीवरी, पीछे फील्डर तैनात और एक ही रन का इजाफा। लक्ष्य क्या होगा देखने लायक होगा वो भी। खचाखच भरा है मैदान, खूबसूरत ग्राउंड। विकेट छोड़ी हवा में, गेंद और नीचे और एक झटका ब्रिज बास्टर की टीम को लगता हुआ विकेट नंबर 8। स्कोर 148। बैक टू बैक झटके लगते हुए आज बल्लेबाजी क्रश होती हुई नजर आई ब्रिज ब्लास्टर टीम की। एक 160 रन इस अचीवेबल स्कोर। मैं तो कहता हूं अगर बल्लेबाजी तगड़ी हो अपोजिट टीम की, 200 रन भी आसानी से चेज हो सकते हैं। मैदान छोटा है, न्यूजीलैंड से भी छोटा। 50 मीटर की बाउंड्री